परसों सेम टाइम पर आपका लेक्चर नंबर 2 है। ओवर टू यू मिस, थैंक यू सो मच। All right, thank you so much, sir. Okay, students, so पहले बात कर लेते हैं हम outline की। So why it's compulsory to talk about outline, ताकि आपको पता हो what you are gonna read। आपको हर चीज हर पॉइंट पे हम क्लियर कर देते हैं, हम आपको किसी एम्बिग्विटी में नहीं रखते कि हम आपसे एक चीज का वादा कर लें और वो चीज आपको ना दें। तो हर चीज क्लियर है, आपके सामने है, जो आपको बताया जाएगा वही सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। Okay, so this is your course outline. We have 3 lectures of question answer sessions and practice sessions, you can say. And we have 12 lectures of our course. Let me introduce myself first. I'm Kritulan. I'll be your instructor for this course. I have done my BS in English Language and Literature, and I have MPhil degree in Applied Linguistics. And I have 7 years of communication instruction experience. Okay, so let's talk about our very first lecture. Our very first lecture is about the introduction of your course, why you have to learn spoken English, and what are the rules of spoken English, what are the pillars of spoken English, and then we will study self-introduction part 2. In lecture 2, we will move to pronunciation. What is pronunciation? Sounds of words. इसे हम pronunciation कहते हैं. Why it's compulsory to learn sounds of word. We will practice tongue twisters, जो कि कुछ language के sentences हैं जो आपको sounds learn करने में help देते हैं. और फिर हम बात करेंगे formal ways of की कि certain situations में, real life situations में आपने English कैसे बोलनी है. Then we will cover self introduction part 2, and after that I'll start your practice, जो कि आपके sounds of words होंगे, और ये आप कहाँ मुझे practice करके submit कराएंगे? In your WhatsApp group. जब आप WhatsApp group में इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे तो वहाँ हम बहुत सी practices करते हैं, ठीक है? Then your lecture number 3 is all about English communication. उसमें हम grammar भी move कर जाएंगे. We will study parts of speech. Then we will study tongue twisters. Tongue twisters की हम practice करेंगे. फिर हम देखेंगे what are the formal ways of spoken English. उसमें हम देखेंगे किस तरह से आप किसी को welcome कह सकते हैं as a hospitality gesture and as a answer to gratitude. Then our lecture 4 is about English grammar in use. Why it's grammar in use? कि आपको पता हो certain situation में, ये जिस तरह हमारे parts of speech है, noun, pronoun, verb, इन्हें आपने किस तरह से use करना है. और फिर formal ways of spoken English पे हम जाएंगे, और फिर आपकी pronunciation की practice होगी. Our lecture 5 is also about English grammar in use. आपको पता है कि ग्रामर के बगैर कोई भी लैंग्वेज आप लर्न नहीं कर सकते. सो उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न करेंगे अगेन, जिसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, और उनका यूज कहाँ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. सबसे ज्यादा आप जिस चीज पे फंस जाते हो वो ये होता है कि वेयर यू हैव टू यूज दिस expression, where you have to use this word. So we will learn all those things in this course. Then next is introduction to your sentences. सॉरी टेंसेस. टेंसेस तो आप सबको पता है कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हैं वो आपके टेंसेस हैं, और आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, या किसी भी टाइप की इंग्लिश में कंपल्सरी है आपके लिए. फिर हम देखेंगे हाउ टू रिजेक्ट समथिंग इन अ फॉर्मल वे, इन अ पोलाइट वे, और फिर आपकी साउंड्स ऑफ वर्ड्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होंगी. उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम इंग्लिश ग्रामर ऑफ इन यूज को देखेंगे, और उसके साथ साथ हम फ्रीलांसिंग पे स्विच कर जाएंगे. फ्रीलांसिंग भी आपको ये मैं बताऊंगी कि किस तरह आप इंग्लिश सीख के फ्रीलांसिंग कर सकते हो. यूजुअली आप लोग कहते हो इंग्लिश इज काइंड ऑफ यूजलेस स्किल, तो उसमें हम फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते. बट बेटा, दे आर hundreds of thousands of opportunities if you are a good communicator, if you are very good in speaking English. ठीक है. सो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, हम देखेंगे कंजंक्शंस और इंटरजंक्शन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होते हैं. देन हम फॉर्मल वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे हाउ यू हैव टू आस्क फॉर परमिशन. देन हम देखेंगे व्हाट आर द गुड करियर्स एज अ कम्युनिकेटर. अच्छा कम्युनिकेटर बन के आप कौन कौन से करियर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं, नॉट ओनली ऑनलाइन जॉब्स. ठीक है. उसके बाद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हम फाइवर पे देखेंगे, फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे, फाइवर की गिग्स देखेंगे, और आपको कीवर्ड सर्च वगैरह मैं बताऊंगी, और बताऊंगी किस तरह आप बेटर तरीके से फाइवर को यूज कर सकते हो इफ यू हैव spoken English skill. Then we will talk about pronunciation practice via dialogues. अब बेटा via dialogues practice हम क्यों करेंगे?
कि हमने पहले सारे वर्ड्स के साउंड सीख लिए, उन साउंड्स को सीखने के बाद अब हम रियल लाइफ सिचुएशंस पे मूव कर जाएंगे कि सर्टेन जो आपके नेटिव स्पीकर्स हैं, जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, वो किस तरह से बोलते हैं एक सर्टेन सेटिंग में। सेटिंग कहते हैं इंग्लिश में कि जो एक माहौल हो या एक जगह हो, ठीक है। आज लेक्चर 7 इज अगेन अबाउट टेंसेस एंड फ्रीलांसिंग। इसमें हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को देखेंगे, उन्हें एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आपने किसी से बात शुरू करनी है तो मेरा बेटा आप बात कैसे शुरू करोगे। फिर हम देखेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को देखेंगे, लिंक्डइन को देखेंगे। लिंक्डइन अब तक का सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, जिसपे आप समझते हो कि कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हम देखेंगे कि इससे हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं लिंक्डइन से, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल अगेन प्रैक्टिस आवर इंग्लिश pronunciation via dialogues. In lecture 8, our focus is again on tenses and freelancing. So we will study future tense, we will study auxiliaries in English language, we will take overview and we will make profiles on Amazon and YouTube कि अगर आपका चैनल है, ठीक है, तो आपने उसे किस तरह से स्पोकन इंग्लिश सीख के उन चीजों को एक्सटेंड कर सकते हो। और Amazon का अगर आपको पता हो, देयर इज अ ग्रोइंग नीश जिसे हम कहते हैं Amazon ऑडियो बुक्स, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं या किस तरह से आप अपनी सर्विसेज जो हैं उन्हें सेल कर सकते हो। फिर हमारी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी। आवर लेक्चर 9 इज काइंड रियली रियली इंपॉर्टेंट। It's about vocabulary building and types of sentences. Sentence क्या है? We all know कि sentence is a cluster of meaningful words. या एक ऐसा क्लस्टर है, एक ऐसा मजमुआ है जिसका कोई मीनिंग हो, वो हमें समझ आता हो। फिर हम देखेंगे what are the strategies to build vocabulary. Then we will study synonym and antonyms, and we will study how to understand new words using context. कि आपको एक लफ्ज का मतलब नहीं आता तो उसके इर्द गिर्द वाले लफ्जों को देखकर किस तरह से आप उसका मतलब जो है समझ सकते हैं। Alright, thank you so much, sir. All right, student. So in this course, we will not only focus on speaking, लेकिन जो आपके बाकी 2 modules हैं IELTS के, जो कि आपका रीडिंग और लिसनिंग है, हम उसे भी साथ साथ कवर अप करेंगे। We will study active listening skills, और हम देखेंगे आपने कन्वर्सेशन में किस तरह से अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। एक्टिविटीज करेंगे ग्रुप में। यूजुअली आप लोगों का माइक अनम्यूट करके भी लाइव क्लास में भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, या बच्चों से बच्चे अपना पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इंग्लिश किस तरह प्रॉपर इनोटेशंस जो आप गैप्स देते हो इंग्लिश में, या प्रोनाउंसिएशन, उससे किस तरह रीडिंग से आप बेहतर कर सकते हो। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द फेमस वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश में कुछ लफ्ज हैं, कुछ फ्रेजेस हैं। फ्रेज कहते हैं दो से दो ज्यादा लफ्जों के मजमूए को जिसका एक मीनिंग हो, ठीक है, कि वो किस तरह से आप उन्हें यूज करोगे, ठीक है। फिर हम इडियम्स और स्लैंग्स को देखेंगे। इडियम्स का आप सबको पता है कि कुछ ऐसे लफ्ज जो कि अपने एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट हो और एक वाया कॉन्टेक्स्ट वो डिफरेंट मीनिंग में यूज होते हो। जैसे ओवर द मून, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। जरूरी नहीं है कि ओवर द मून का मतलब है कि कोई बंदा जो है वो चांद के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। और फिर स्लैंग क्या है? स्लैंग है आपकी गली कूचों की जुबान। फिर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक भी की हम बात करेंगे, इसमें हम आइट्स के क्यू खा टॉपिक को भी कवर करेंगे। आप फिर देखोगे अगर आपने किधर प्रेजेंटेशन देनी है तो किस तरह से आप बेटा उधर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे हम देखेंगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। आप कोई भी हैं, आप कोई भी फ्रीलांसर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको बताऊंगी मैं किस तरह से आपने उन्हें आंसर करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। और फिर आपकी एक फाइनल प्रेजेंटेशन होगी जिसके बाद आपको कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है जी, अब हम आपसे अपने लेक्चर नंबर 1 पे मूव करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 इज अबाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोकन इंग्लिश, के आपको बताना क्यों जरूरी है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है या नहीं करना, या आपको आउटकम क्या मिलेगा जब आप ये कोर्स पढ़ लोगे। ठीक है, फर्स्ट आवर एम इज टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप बेहतर तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर लो और आप फ्लुएंट
फ्लुएंटली बोल सको, फ्लुएंटली क्या है, बगैर रुके बोल सको, कोहेरेंटली बोल सको, आपकी जो सारी बातें हैं उनमें रब्त हो, उनमें लिंक हो, or you how you can speak in certain situations with confidence. Spoken English एक बात मैं ऐड कर दूं, एक सॉफ्ट स्किल है, ऐसी स्किल जो बेटा पूरी जिंदगी आपके साथ चलती है। आप अब सीख लोगे ना तो पूरी जिंदगी ये स्किल आपके साथ चलेगी। आपको पता है कोई सॉफ्टवेयर आता है ना, अगर हम अपनी स्किल्स को प्रैक्टिकल स्किल्स से मैच कर लें तो एक दफा आपने इंग्लिश सीख ली, वो इंग्लिश पूरी जिंदगी आपके साथ चलनी है। ये नहीं हुआ कि फोटोशॉप की तरह आपका नया वर्जन आ गया तो जो पुराना वर्जन है उससे ज्यादा एडवांस्ड डिजाइन्स होंगे, ऐसा नहीं है। ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती हैं। पर्सनालिटी का पार्ट बनने के बाद क्या होता है कि आप के साथ सारी जिंदगी रहती है, पूरी जिंदगी आपको फायदा देती हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन आपकी इम्प्रूव कराना चाहूंगी मैं, एंड योर इनोटेशन के किस जगह पे आपने किस तरह इंग्लिश बोलते हुए गैप देना है। देन वी आई बिल्ड योर वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेसिव रेंज। कोई भी लैंग्वेज जो होती है उनमें उसमें हम अच्छे तरीके से खुद को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो उस कहने को आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपनी ट्रू इमोशंस को कन्वे कर सकते हो, ठीक है। और वोकैबुलरी बिल्डिंग भी ऑब्वियसली आपकी इस कोर्स के साथ होगी। इवन इस लेक्चर में भी आप बहुत से नए लफ्ज सीख लोगे। बूस्ट योर लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो एक अच्छा लिसनर भी होता है। जब आपको एक बात, एक लैंग्वेज समझ आ रही है तभी आप उसका आंसर कर सकोगे ना, बिना समझे तो आंसर नहीं करोगे। सो आपकी लिसनिंग स्किल्स पे भी हम फोकस करेंगे जो कि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करेगी। देन कल्चर अवेयरनेस एंड कॉन्टेक्चुअल यूजेज, कि आप डिफरेंट कल्चर्स में जब मूव करते हो, फॉर एग्जांपल इन ब्रिटिश और यूएसआई, तो आपने वहां किस तरह से डील करना है, व्हाट आर द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एक्सप्रेशन टू यूज इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आपकी कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी आ जाए, कि आप अच्छे तरीके से बात कर सको अबाउट एवरीडे टॉपिक्स, अबाउट योर प्रोजेक्ट्स और अबाउट ऑल अदर थिंग्स। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी क्लास में अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सको, अपने सेमिनार्स में बोल सको। आप सबको पता होगा कि हमारे 30% मार्क्स जो होते हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन पे लगते हैं, ठीक है। फिर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। आप जब किसी जगह प्रोजेक्ट पे जाते हो ना तो आपको वहां बताना पड़ता है कि आप क्या करोगे उनके लिए। यूजुअली आपको पता है कि आप जो अब आपका फाइवर है वो भी आपको सर्विसेज देता है। आपको कुछ क्लाइंट को जो आपके हाई टॉप रेटेड बायर्स हैं उन्हें वो वीडियो कॉल की सर्विसेज देता है कि आप वीडियो कॉल पे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जब अगर आप क्लाइंट अपने को वीडियो कॉल पे ले जाते हो या आप उन्हें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे ले जाते हो तो ये इमिडिएटली आपके चांसेस 70% बढ़ा देता है कि वो बंदा आपको ही हायर करेगा। फिर टेलीफोन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में आप बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरह करनी है जो कि हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन से बहुत डिफरेंट होती है। आपकी फ्रीलांसिंग सक्सेस में 70% रोल है आपकी कम्युनिकेशन का, स्किल बाद में आती है। पहले आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको क्लाइंट की नीड समझ जानी चाहिए। उसके बाद अब देखो मेरे बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे ये काम नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती, दे सेड ओके आई एम वी आर रियली कंफर्टेबल विद यू, आप किसी को हायर करके हमारा काम करा दें। सो इस तरह से भी बीइंग अ मिडल मैन होना भी एक बहुत अच्छी जॉब है। पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पब्लिक में आप किस तरह से बोलोगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पब्लिक में आप जॉब्स किस तरह से ले सकते हो। जैसे आपकी आर्ट्स काउंसिल में जॉब है, आपकी होस्टिंग की जॉब है, आपकी मीडिया में जॉब्स हैं, उन पे भी हम देखेंगे कि उन जॉब्स को हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता है ना एफएम रेडियो स्टेशन होता है, बहुत से लोग अब नहीं सुनते लेकिन पहले होता था। उसमें भी जॉब्स आती हैं और वो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और उनकी सैलरी जो है वो दूसरी गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज्यादा होती है। फिर आपको की ग्रामर और सिंटैक्स बेहतर मैं कराऊंगी। सिंटैक्स होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि आप किस तरह अंडरस्टैंड करके अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलते हो। उसके बाद आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आ जाएंगी, आपके इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि बेहतर तरीके से आपने किस तरह से किसी जगह पे
कौन सा एक्सप्रेशन बोलना है, क्योंकि देखो ना हम उर्दू बोलते हैं तो बहुत से लफ्ज और बहुत से मुहावरे हम अंदर इस्तेमाल करते हैं। सेम इज द केस विद इंग्लिश लैंग्वेज। सो उसके लिए हमें क्या लर्न करना चाहिए? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन लर्न करने चाहिए, कोलोक्वियलिज्म लर्न करना चाहिए, और हमें डिफरेंट फ्रेजेस लर्न करनी चाहिए। वो सारी चीजें हम लर्न करेंगे। फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट भी आपको मैं इसमें दूंगी कि आपका फीडबैक दिया करूंगी जब आप खुद को भी दूसरों से कंपेयर करके देखोगे। जब आपके फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स ने आपको सबमिट कराई असाइनमेंट, एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक्टिविटी जमा कराई, तो आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे और फिर आप देखोगे कि क्या चीज आप में बेहतर है और क्या चीज उनमें बेहतर नहीं है। फिर हम कल्चरल सेंसिटिविटी को भी देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्टाइल्स किस तरह के हैं डिफरेंट कल्चर्स में, और रियल लाइफ स्टिमुलेशंस में, रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको पढ़ाएंगे। और नॉट ओनली दिस कोर्स, अगर आप इस कोर्स में इनरोल होते हैं या ये कोर्स करते हैं, आफ्टर आपको आपके का जो इंस्टीट्यूट है वो एक फ्री इंटर्नशिप देता है। उस फ्री इंटर्नशिप में आपको इवन रोल प्लेइंग भी कराई जाती है कि अगर आप एक जगह मार्केटिंग मैनेजर हैं तो वहां बेटा आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको सारी चीजें कराई जाती हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को। मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस आप रखें। 7 ऐसी चीजें हैं, अगर वो आपको आ जाती हैं तो आप कम्युनिकेशन के मास्टर हो जाते हैं। What is the first thing? The first thing is clarity. If you are saying something to someone, it should be clear. आपका मीनिंग क्लियरली कन्वे करे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस होने का क्या मतलब होता है? अवेयर होना किसी चीज के बारे में। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट सिचुएशन, यू हैव टू अवेयर अबाउट ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूं, मैं थ्रू आउट आपको इंग्लिश में लेक्चर दे जाऊं तो आपको वो लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो क्या है, हमें कॉन्शियस होना पड़ता है कि जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं किस तरह से उस पर्सन से उस पर्सन का क्या लेवल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे जो वर्कर हैं वो पंजाबी बोलते हैं, अब अगर हम उनसे जाके इंग्लिश बोलने लग जाएं तो हम कॉन्शियस नहीं है। इस तरह ना उनको अपनी जॉब समझ आएगी, ना वो क्या कह रहे हैं वो हमें भी समझ नहीं आएगा। इस कॉन्शियसनेस से हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज कंसिडरेशन। अब आप कहोगे कि ये तो भाई सादा सादा पॉइंट है, ये सबसे पहले क्यों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस पर क्यों है? रीजन क्या है? क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस और कंसिडरेशन ही आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाते हैं। अगर आपको पता हो कि जो सारे अंबिया थे वो बेहतरीन बोलने वाले थे, दे वर कंसिडरेट, दे वर कॉन्शियस, कि किस तरह से उन्होंने अपना एक मीनिंग कन्वे करना है। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? हाउ मच यू आर considerate towards others emotion, कि आप उनके इमोशंस को किस तरह से समझ रहे हो, आपको किस सिचुएशन में किस तरह से बात करनी है। क्या आप बहुत ज्यादा रूड हैं? क्या आप उनसे बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे हैं? तो कंसिडरेशन जो है, दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखना, ये की है कम्युनिकेशन की, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने बायर से, अपने क्लाइंट से या किसी भी पर्सन से बात करते हैं। कंप्लीटनेस, आप जो बात कह रहे हैं, आपने किसी को दास्तान अमीर हमजा नहीं सुनानी, आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए, उसका मीनिंग हर बंदे को समझ आना चाहिए। देन courtesy is again about considering other, कि उनका, आप अगला बंदा जो है अगर वो आपसे बुरी तरीके से भी बात कर रहा है तो आप उससे courteous हैं, आप उसे उस मैनर में जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आपको पता है कि किसी बंदे ने अगर आपसे बुरे तरीके से बात की है तो आप हर्ट हुए हैं, और इस तरह आप अगले बंदे को हर्ट नहीं करना चाहते। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीट आपको पता है द मोस्ट सॉलिड मटेरियल, कि कहा जाता है कि अगर एटॉमिक अटैक हो तो उसमें भी कंक्रीट से बनी हुई इमारतें जो हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, तो कॉन्क्रीटनेस, लैंग्वेज में कॉन्क्रीटनेस क्या है? कि आपकी ग्रामर इतनी सॉलिड हो कि आपकी बात बिल्कुल करेक्ट हो, आपको courteous हो आप, आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो। तो ये जो सारी कॉन्क्रीटनेस है ये इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज में आ जाएगी। और करेक्टनेस इज ऑल अबाउट योर ग्रामर, कि आप कितने बेहतर तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की। आपका पहला सबक है, रेगुलर सबक जो है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का है। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? जब हमें किसी को अपने बारे में बताना पड़ता है कि हु वी आर,
ठीक है। अब आपको कहाँ कहाँ खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकता है। इट कैन बी इन योर क्लास, आप क्लास में जाते हैं तो आपको टीचर कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं जब फिजिकल क्लासेस को भी पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर वालों को पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाई यू सिलेक्टेड लिटरेचर। तो उसमें 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना नहीं आता। एट इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में आप जाते हो ना, सबसे पहला आपको क्वेश्चन वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो आपको जज करना चाहते हैं क्या आप इस जॉब के एलिजिबल हैं या नहीं है। देन एट अ न्यू जॉब, आप कहीं जगह न्यू ज्वाइनिंग देते हो तो वहां भी आपको खुद इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। एट सम न्यू हॉबी, आप कोई हॉबी ज्वाइन करते हो, कोई रीडिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन कर लिया, स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लिया। एट सम लार्ज इवेंट में अगर आप किसी जगह होस्ट हो या आप किसी जगह स्पीकर हो, तो वहां भी आपको जाके बताना पड़ता है कि आप कौन है। इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के भी सामने खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज ग्रीटिंग। जिस तरह से हम कहते हैं सलाम दुआ करना एक दूसरे से, ठीक है, उसे हम ग्रीटिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। सो पहली ग्रीटिंग क्या है? दैट्स हेलो। हेलो क्या है बेटा? एक यूनिवर्सल ग्रीटिंग है। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि हम लोग तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, या सर ने सेशन स्टार्ट किया तो सर ने सबको अस्सलाम वालेकुम कहा। अब हम अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहते, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में पढ़े अस्सलाम वालेकुम या क्यों नहीं पढ़े? व्हाट इज द रीजन? कि बेटा अ, आपको नहीं पता अगले बंदे का रिलीजन क्या है, आपको नहीं पता वो किस कल्चरल बैकग्राउंड से है, तो हमें एक जर्नल ग्रीटिंग रखनी है जो हम कह सकें। सो हेलो इज दैट जर्नल ग्रीटिंग। देन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग हमने कब से कब तक कहना है? सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक दिन में हमने किसी को गुड मॉर्निंग कहना है, यानी सुबह खैर। उसके बाद गुड आफ्टरनून, 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपने गुड आफ्टरनून कहना है। अब हमने गुड नून क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ऐसी कोई फ्रेज है ही नहीं जो दोपहर बखैर कहती हो। ठीक है, नून का टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट सा है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि जवाल का वक्त है ये। 12 बजे के थोड़ा 10-15 मिनट बाद तक सवाल का वक्त रहता है। सो दैट इज नॉट काइंड इम्पोर्टेंट थिंग। सो हम गुड नून की फ्रेज यूज नहीं करते जो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है इंग्लिश में। सो हम क्या यूज करते हैं? गुड आफ्टरनून। देन गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग आपने कब तक यूज करना है? 5 बजे के बाद से, बेशक आप रात 3 बजे 4 बजे तक जागते रहें, तो आपने गुड इवनिंग ही कहना है क्लाइंट से बात करते हुए। गुड नाइट क्यों नहीं कहना? गुड नाइट हमने इसलिए नहीं कहना क्योंकि ये कन्वर्सेशन एंडर है। गुड नाइट का मतलब होता है भाई अब बात खत्म है, अब मैं सोने लगा हूँ। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया वाले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग की जगह क्या यूज करते हैं? गुड डे। बेटा आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम लास्ट पे डील कर लेंगे। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, पैनिक ना करें। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये सारी तो हो गई आपकी फॉर्मल ग्रीटिंग्स। जब हमने क्लाइंट से बात करनी है, हमने प्रोफेशनल एटमोसफियर में बात करनी है, तो अब हम इंसान है ना, हमने हर वक्त प्रोफेशनल एटमोसफियर में तो नहीं रहना। तो उस वक्त हम क्या यूज कर सकते हैं? उस वक्त हमारी कुछ इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज हाय। ठीक है। अच्छा, अब एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप ने को अगर कोई आपको हेलो कहता है तो उसके आंसर में आपने हाय कहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो का आंसर हेलो ही है। हाय जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। अगर आपने ईमेल भी लिखनी है तो उसमें हाय नहीं लिखना। ठीक है। हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया, व्हाट्स गुड, ये सारी जो है ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। हैया जो है ये हाय हो आर यू की स्लैंग है। स्लैंग का मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो कैजुअल लैंग्वेज हो उसे हम स्लैंग कहते हैं। व्हाट्स गुड कहाँ यूज होती है? व्हाट्स गुड यूज होती है अमेरिका में। अब ये आपका आ गया कल्चरल डिफरेंस आ गया कि किस जगह पे आपने किस तरह से यूज करनी है। अच्छा, फिर आगे आपका नाम आ गया कि आपने अगले बंदे को अपना नाम कैसे बताना है। अब बेटा आप कह सकते हैं आई एम। अब ये वर्ड जो है ये आई नहीं है, इसे आप लोग आई पढ़ते हो लेकिन ये आई नहीं है, दैट इज आई। ठीक है। आई क्या है? वो ई वाई ई आई है जो कि हमारी आंख है। ठीक है। सो व्हाट इज दैट वर्ड? दिस इज आई। आई एम दिस, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल से, आई एम खुरत।
और अब हम अगर जब एक लैंग्वेज इंग्लिश में होता है ना कि बड़ी शॉर्ट फॉर्म्स बोली जाती हैं, तो उन लोगों को समझा जाता है दे आर वेरी मच प्रोफेशनल, इन्हें इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है। तो उसमें क्या हुआ, आई एम को मिला के हमने क्या बना दिया, आई एम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बट आई से आई एम कुरत। ओके, सो देन आप आपके जहन में आ रहा है कि आपने माई नेम इज ही कहना है कि माई नेम इज दिस। अच्छा, अब उसे आप किस तरह से जरा प्रोफेशनलाइज कर सकते हो। नेम और इसको हमने मिला दिया और हमने क्या बना लिया, माई नेम्स, कि मेरा नाम जो है वो ये है। दिस इज, अब दिस इज कहाँ यूज होता है, दिस इज यूज होता है जब आप किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, या किसी से ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज में वो कहते हैं हेलो दिस इज जॉन, हेलो दिस इज मैरी। ठीक है, जब फोन उठाते हैं ना आपने, बल्कि ओल्ड इंग्लिश मूवी, आप अगर एफएससी में आपने देखा हो, वो जो आपकी स्पेस वाली मूवी थी, उसमें भी वो बार बार कॉल उठा रहे होते हैं तो वो कहते हैं दिस इज दैट, आई गेस फ्रेंड फ्रॉम अदर प्लैनेट नेम है उसका। ओके, अब आपको लोकेशन के बारे में भी बताना पड़ता है, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। इकबाल कहते हैं इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, कि आपका जो मुल्क है वो सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है आपका। अच्छा, आई एम फ्रोम, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी, अगर पाकिस्तान में एक कंट्री में विद इन अ कंट्री है तो आप अपनी सिटी के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल बट आई से आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। और आपने अपनी बाज जगह पे अपनी नेशनैलिटी बतानी होती है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाओ या किसी और कंट्री में जाओ तो आपको वहाँ अपनी नेशनैलिटी बतानी है। आप क्या कहोगे, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आपने अपनी कंट्री का नेम बता दिया। या आप क्या कह सकते हो, आई कम फ्रॉम फैसलाबाद, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम यूएई। और उसके बाद आपने क्या कहा, "उम, आप अगर एक जगह पे पैदा हुए हो लेकिन आप पले बड़े दूसरी जगह पे हो तो आप कैसे बताओगे, आई एम बोर्न इन एंड रेज्ड इन, फॉर एग्जाम्पल आई एम बोर्न इन फैसलाबाद बट रेज्ड इन इस्लामाबाद, और आई एम बोर्न इन पाकिस्तान बट रेज्ड इन यूके। अब आप वॉज भी लगा सकते हो, आई वॉज बोर्न इन एंड रेज्ड इन। अब आप क्या कह सकते हो, अगर एक जगह पले बड़े, आपने एक जगह पढ़ा और लेकिन आप शिफ्ट दूसरी जगह हो गए तो आप क्या कहोगे, आई ग्रू अप इन बट लिविंग इन, फॉर एग्जाम्पल आई ग्रू अप इन पाकिस्तान बट लिविंग इन यूके। लिविंग इन का मतलब है कि आप आजकल कहाँ रह रहे हो, लिविंग nowadays, इफ समवन इज आस्किंग यू वेयर यू आर लिविंग nowadays, कि आजकल आप कहाँ कह रहे हो, तो फिर आप बताओगे कि आप, आई एम लिविंग इन दिस प्लेस। अब आपने अगर किसी को इतने सालों का बताना है कि आप कितने सालों से किसी जगह पे रह रहे हो, तो आप क्या बताओगे, आई बीन, आई हैव को मिला लिया तो वो क्या बन गया, आई बन गया, आई बीन लिविंग इन यूके सिंस 5 years। आप अगली चीज क्या हो सकती है, अगर आप पिछले गुजरे हुए सालों के बारे में बताना चाहते हो कि आप कहाँ रह रहे थे, तो आप कहोगे आई हैव स्पेंट पास्ट ईयर्स इन, कि मैंने जिंदगी के पिछले साल जो हैं वो यहाँ गुजारे हैं। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा बर्डनाइज नहीं करना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई विल चेक योर क्वेश्चंस। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ लो। अहमद, ये आपका बेटा लेक्चर ही है, ये सारी चीजें जो है इस कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वी हैव 3 minutes left। थैंक यू मारिया जी। तंजीला, क्या क्वेश्चन है आपका, क्लास बेटा आपकी आज से स्टार्ट है या आपकी क्लास ही हो रही है? आई विल गिव यू असाइनमेंट इन नेक्स्ट लेक्चर। हाँ जी जी, इंटरेक्शन भी है। आप लोगों को, मेरे पास 1000 स्टूडेंट की क्लास है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ आप लोग रेगुलर हर रोज के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज भेजते हैं और फिर इन एक्टिविटीज पे आपको फीडबैक देती हूँ, आप एक दूसरे की एक्टिविटीज सुनते हो। इस तरह से आपका जो है कम्युनिकेशन इंक्रीज इनहांस हो जाती है। थैंक यू सो मच सम्या।
आप लोग प्रैक्टिस की फिक्र ना करें, हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग बाद में इंग्लिश बोल लेंगे। जी मैडम, यू हैव 2 minutes मोर। बेटा प्रोनाउंसिएशन, ऑलराइट सर। आई हैव को जब हम इकट्ठा मिला के बोलते हैं तो वो आईव बन जाता है। हाँ जी, फ्रीलांसिंग आपको मैं कराऊंगी, जिस तरह आप जो है बेटा अपनी वॉइस ओवर की सर्विसेज सेल कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, तो ये सारी चीजें क्या है, ये फ्रीलांसिंग है। आप बात करें अपने, जिन लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है, आप उन्हें बताएं तो वो आपको ग्रुप के व्हाट्सएप लिंक में ऐड कर देंगे, प्रोसेस बता देंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त वीडियो एडिटिंग एंड